Okay, Simran, first of all, thank you for taking time out for having a chat with us. And I mean, we have definitely been following your journey. It's been amazing. And to see a talent like you coming up the ranks, it's such a joy to see you from where you started to where you are now. So on that note, firstly, congratulations for लुट ले गया. I mean, क्या ही Thank you बोला so जाए उसके much. बारे में, अब तो पूरी दुनिया बोल रही है. It's such a beautifully made song overall. It has captivated the entire country, I guess, and even beyond. In that Yeah. context, स्त्री आया था लास्ट ईयर, स्त्री का गाना आया था आपका, आई नहीं. और लुट ले गया इस साल आया है. And that takes me back to your 2019 interview you once did with one of the publications. You said there कि of course you would like to sing in Bollywood, but that's not something that you really crave for, or you aim for it. It's not something that you aim for. So now that अब वो हो गया है, बॉलीवुड आ गया आपके पास, खुद आपने खुद बोला था कि आप उसके पीछे भागेंगे नहीं. आई थिंक दैट वाज द रियल दैट वाज स्टेटमेंट, आप The उसके पीछे meaning behind भागेंगे. it. Yes. So now that it has come to you, and it's been such a beautiful journey of yours, what are your thoughts when you look back at your statement, and now in the present when you see things happening on their own? How do you think about it? Well, back then also when I said कि मैं बॉलीवुड के लिए कभी भागूंगी नहीं, उसका मतलब ही सिर्फ ये था. उसका जो पूरी कॉन्वर्सेशन का उस पूरी कॉन्वर्सेशन में उसका कॉन्टेक्स्ट ही ये था कि बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन हु हैज बिन वेरी वोकल अबाउट हर ओन म्यूजिक. Hmm. राइट. सो मेरा शुरू से ही लक्ष्य ही यही रहा है कि मुझे I want to put out my music. I want to tell people what do I have within me, what do I have to offer. But having that said, Bollywood as a whole, हम बिल्कुल भी ये क्वेश्चन या डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बॉलीवुड जिस तरीके की रीच आपको देता है, जिस तरीके का आपको मासी अप्रोच देता है, वैसा इंडी गानों को अचीव करने में सालों साल लग जाते हैं. Very true. और ऐसा हमने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं. सो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि जैसे कि आपने राइटली पुट कि बॉलीवुड आया मेरे पास. और अगर हम उसके पीछे जाकर देखें तो वो शायद उसका कारण यही बना बिकॉज आई वॉज बोल्ड इनफ टू पुट आउट माई ओन वॉइस आउट देयर. आई वॉज बोल्ड इनफ टू पुट आउट माई इंडिपेंडेंट म्यूजिक आउट देयर, जिसके वजह से कहीं किसी ने उस आवाज को रिकग्नाइज किया, उस आवाज को समझा, उन्हें अच्छा लगा. कुछ कुछ उनको उस चीज के अंदर कोई एक क्वालिटी नजर आई, और जिसके कारण आई नहीं या लुट ले गया और ऑल द अदर सॉन्ग्स दैट हैव हैपेंड. सो right now I am really looking forward to all the songs that are going to release through Bollywood as well. There are multiple songs that I've recorded, and they are all beautiful songs and very different in their own way. एंड बट मेरी इंडिपेंडेंट जर्नी मुझे लगता है मेरे संगीत की ताउम्र चलती रहेगी. Fair enough. I mean, दोनों चीजों के अपने ही अलग advantages हैं. Independent journey has its own pluses, and Bollywood has its own. And when I look back at it, आपका एक I think 2023 में EP आया था, Foking Rani, which Yeah. was with Sony Music, which was Yeah. a very beautiful album. And it gave its own, you gave your own spin to the folk sound that we have in India, and in many ways uh, contextualizing it to the contemporary listening habits. जब वो ईपी आपने बनाया था, उस समय आपका क्या थॉट प्रोसेस था? उस समय थॉट प्रोसेस ऑनेस्टली, जब मैंने रादर आई वुड से कि वो ईपी का शेप तो उसने बाद में लिया है. सबसे पहले तो वो गाने थे जो मैं अपनी टीम के साथ बैठ के बना रही थी, जो मेरे साथ लिरिसिस्ट या मेरे साथ म्यूजिक प्रोड्यूसर जो काम करते हैं, हम तीनों, हम लोग सारा सारा दिन बैठ के स्टूडियो में, हम लोग 14-14 घंटे हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गाने बना रहे हैं. हाँ. और दी ओनली आइडिया बिहाइंड इट वाज के ऐसा संगीत बनाना है जो जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है,
who am I as a person? I am, when I have to define myself, or if I'm introducing myself to you, I would always say, okay, okay, fine, like I'm Simran Chaudhary and I'm a performer, I'm an artist, and I'm a songwriter. But apart from that, who is Simran Chaudhary? I am somebody who's grown up around culture and folk music a lot. I have seen a lot of culture being celebrated rather around me. मैं शुरू से एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर रही हूँ। तो मैं छोटे होते जैसे कभी कभी मिमिक किया करती थी कि मेरी बुआ ऐसे बात करती है, मेरी दादी ऐसे बात करती है, मेरी नानी ऐसे बात करती है, नानी की कोई सहेली है गांव के अंदर वो कैसे बात करती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो मेरे चाइल्डहुड नुआंसेस हैं, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग देम इनटू माय म्यूजिक सो दैट आई एम एबल टू just say out what I have experienced as a person. And I knew for a fact कि क्योंकि जहाँ पे folk music की बात आती है, या जहाँ पे I won't even say folk music because वो अक्सर misinterpret हो जाता है। folk concepts हैं, folk कहानियां हैं, बातें हैं हमारी जो आम आम जिंदगी में जो हम बातें करते हैं, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सब ने एक्सपीरियंस की हैं। सो फोकन रानी वाज ऑल अबाउट दैट। फोकन रानी वाज ऑल अबाउट sharing shared experiences, if I can put it up like that. Fair enough. Fair enough. And I think it is a wonderful piece of music that you have created. सोनी म्यूजिक के साथ ये एल्बम आप ये ईपी आपका आउट हुआ था, सोनी म्यूजिक के साथ आपके काफी सॉन्ग्स आते हैं. So how did this collaboration with Sony come up? How did the signing up and joining hands with Sony come up in your life? Well, again, like I just thank the universe, thank God for this. 2022, the last working day of any corporate office, जो 22nd December को usually सब corporate offices का last working day हो जाता है, and that is the exact day जब मेरी सोनी से मुलाकात हुई. I was introduced to them and then I met them. I played my music to them. और उस समय फोकन रानी जो ईपी है वो मेरी पूरी तैयार थी. And so I'm also like a very passionate storyteller. मतलब मुझे, अगर मैंने कोई चीज बनाई है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि प्रोफेशनली आई एम अ स्टोरी टेलर, बट मुझे उस तरीके से बहुत शौक है कि अगर मैंने कोई चीज बनाई है या अगर मैंने कोई तजर्बा लिया है, तो मैं फिर उस चीज की स्टोरी आपको बताना, मतलब दैट इज लाइक अ पैशन दैट आई हैव. सो व्हेन आई मेट सोनी, एंड मैं हर गाने के पीछे क्या कहानी है, क्या क्रक्स है उसका, क्या सिचुएशन है, मैंने क्या सोच के बनाया है. So I was telling them the story behind every song, and that I think just did the magic both ways. Um, Jaggi, who is the A&R of Sony Music, he liked my music so much, and he felt that whole raw freshness उसके अंदर, and that's just how we started working. You know what? मैंने आप जो भी आपके अभी रिसेंटली गाने रिलीज हुए हैं, वन ऑफ द सॉन्ग्स, बिकॉज मैं आई एम फ्रॉम लखनऊ, राइट. एक सॉन्ग आपका बहुत रिसेंटली आया था, सावन जी विद पैंथर. जी वो जी. पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज सर्टेन कनेक्ट टू द लैंग्वेज, टू द प्लेस, एटसेट्रा एटसेट्रा. That when you were so it was a duo of songs, Makhna and Sawan. Makhna was in your Yes. comfort area, which was Punjabi. Sawan was slightly less comfortable area, which was a mix of Avdi and other things all put together. सावन का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? Honestly, if you're putting it up like that, क्योंकि आपने हमेशा मुझसे पंजाबी सुना है, तो अक्सर कई दफा ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि ओके दिस वाज प्रॉब्ली समथिंग आउट ऑफ सिमरन्स कंफर्ट जोन. बट जेन्युइनली हम्म. द वे आई हैव लर्नड म्यूजिक, मेरे गुरुजी ने जिस तरीके से मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेन किया है, वो हमेशा मुझे यही, उन्होंने शुरू से जिस तरीके से तालीम मैंने ली है, उन्होंने मुझे यही कहा और समझाया और सिखाया कि कलाकार कभी भी सीमित नहीं होता है. हम्म. कला का कोई दायरा नहीं होता है. सो ही इज ऑलवेज ट्रेन्ड मी इन अ वे. और जहाँ अवधी भाषा की बात है, बहुत नजदीक है हिंदी के साथ. हम्म. तो अभी इस समय जब मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, आई एम श्योर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई एक पंजाबी लड़की हिंदी में बात कर रही है.
तो आई मतलब मेरे गुरुजी ने उस चीज में मेरे से बहुत मेहनत भी करवाई है, हम्म। जेन्युइनली। मेरी भाषा के ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है। वो मुझे अलग अलग भाषाओं में गवाते थे, और उनका यही कहना था कि जब आपका क्लासिकल, आपका बेस रेडी है, जब आपकी ग्रामर इज इन प्लेस, no matter what form of writing you are doing, no matter what form of speaking you are doing, once your grammar is in place, you will be comfortable in every form of writing or speaking. तो संगीत का भी एग्जैक्टली exactly ऐसा है। अगर आपने एक बेसिक अपना क्लासिकल का एक बेस सेट कर दिया है, फिर ना तो जॉनर आपको लिमिट कर सकता है, ना ही भाषा। Wonderfully put it. Actually, very, very wonderfully put it. So, when you talk about your classical training, how many years have you trained, and and how much do you train even now? मैं तकरीबन पौने 3 साल की थी जब मुझे, 2.5 पौने 3 साल की थी जब मुझे पापा गुरुजी के पास लेकर गए थे, उनसे हिंदुस्तानी क्लासिकल की तालीम दिलवाने के लिए। और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ, अंटिल आई मूव्ड टू बॉम्बे, आई थिंक 2019 आई मूव टू बॉम्बे, मैंने 2017 तक मैंने लगातार हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा है। तो आप यूं मान लीजिए कि तकरीबन 1999 से 2017 तक मेरी क्लासिकल की ट्रेनिंग हैज बिन वेरी परसिस्टेंट। And how much do you practice now? Do you get time to practice? आई मेक श्योर आई फाइंड टाइम टू प्रैक्टिस, यू Fair कांट enough. डू विदाउट इट। No, pretty, I mean, pretty understandable. And आपकी प्रैक्टिस एक्चुअली, कल मैं आपका इंस्टा आज ही मैं आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे जेसीस कैफे पे जो आपका भी लाइव आपने किया है, आई थिंक कल परसों में किया है, जब भी किया है, आई डोंट नो द कल एग्जैक्ट, रात को किया जी, कल जी जी रात जी। को किया. So I was seeing the story and it is very much reflective in the way you're singing in live, in the live setup. And it's beautiful, and especially when you sing some of those old songs. Boohe Bariyan you sang, and that was so beautiful. यस, आई ऑल्सो डिड आया लाड़िए। Aaya Ladiya you did, yes, यस। which is also again a very beautiful song. And these are not the easy songs to do. These are very difficult songs to perform, and the way you did it was amazing. So it is थैंक reflective of how much you practice and what your classical training has been, which is rare in the current circumstances. That live में भी आदमी उतनी अच्छा गा ले जितना recording में गा रहा है. But it's pretty good. So how much do you prepare before going live? Before going live, I am a very, I'm a very finicky person when it comes to going on stage. Like basically, मुझे stage पर surprises पसंद नहीं है. So I make sure I prepare myself to a point where everything, like I remember everything, my band remembers everything, everybody involved in the process. जब तक उनका ऐसे नहीं हो जाए कि लाइक अभी वो एकदम मेमोरी बन चुकी है उनके हाथ की, मैं तब तक उनसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कल वाला जो हमने शो पुट अप किया, तो उसका मैंने 2 दिन 6-6 घंटे का रिहर्सल उसका सेट रखा था। कि तो कुल मिला के हम लोग ने 12 घंटे उसके लिए रिहर्स किया है, तो जाके वी वर एबल टू पुट अप अ शो लाइक दैट। एंड स्टिल लाइक आफ्टर द शो, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय बैंड, एंड मतलब दिस इज जस्ट हाउ आई एम। ऑफ कोर्स इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बट इट्स जस्ट दैट मुझे ये होता है कि जब मैं लाइव जा रही हूँ, सिर्फ गाना गाना वहां पे काफी नहीं है, आपकी एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। आप गाने को ट्रीटमेंट कैसा दे रहे हैं, आप लोगों लोगों के लिए वो क्या ऐसा कारण बने कि वो आपका गाना जाकर सुने। तो Hmm. उनको वो कारण, मुझे लगता है लाइव से बेहतर और कोई मौका नहीं होता है उन्हें वो कारण देने का। सो वो मेरी हमेशा एक डेलिबरेट कोशिश रहती है कि व्हेन दे गो बैक फ्रॉम अ गिग, दे शुड एटलीस्ट हैव सॉर्ट ऑफ अ हैंगओवर उस शाम Yeah. का। Yeah. I think people will have that hangover for quite a few months now after hearing you live there. So प्रेजेंटेशन की आपने बात करी, एक आपका और आपके प्रेजेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसिस्टेंट चीज है वो जो आप द वेल, द jeweled veil that you wear, ये आइडिया कहाँ जी, से आया आपको वेल और इसका ऑनेस्टली क्या दिस, सिग्निफिकेंस है? जी, ये जो आइडिया आया था जब मैं अपना एक गाना शूट कर रही थी डब्बियां करके। तो हम्म. उस गाने को, जो फोकिन रानी का ये गाना था डब्बियां, उस गाने को जिन वीडियो डायरेक्टर ने शूट किया, पंजाब के बहुत अच्छे भिंडर करके हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं, उन्होंने शूट किया था। एंड ही वांटेड टू डू सम एक्सपेरिमेंटल लुक्स। सो ही हैड दिस वन रेफरेंस इन प्लेस, ही सेड कि मुझे ना सिमरन को ऐसा लुक क्रिएट करना है। आई सेड ऑफ कोर्स, आई हम्म. एम ऑल ऑल गेम फॉर इट। एंड हमने वो किया और लोगों ने बहुत पसंद किया।
कि ये कुछ नई चीज है जो हमने देखी है पहले, कभी इस तरह से म्यूजिक वीडियोस में कभी देखा नहीं था। तो फिर मी एंड द टीम वी डिसाइडेड कि ओके, दिस इज समथिंग दैट इज स्टूड आउट एंड लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे कैरी किया जाए। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिबास चाहे जो मर्जी पहना हो, जब हम यहाँ पर एक इंडियन ज्वेलरी पहनते हैं, एक तो उसका एक बहुत ही अगर मैं आपको उस मायने से बोलूँ, एक विजुअल आइडेंटिटी बनती है। अब जैसे आपने मेंशन किया कि आप ये पहनती हैं, हम्म। आपको चाहे और कुछ भी याद ना रहे, आपको ये याद रहेगा कि वो एक लड़की है जो ये पहनती है। सो हम्म। देर इज अ विजुअल आइडेंटिटी यस। वहां पे। एंड ऑल्सो देर इज ऑल्सो दिस सिग्निफिकेंस दैट इट होल्ड्स कि यू नो ये जो चीजें हैं, अपने अपने मुंह अपने चेहरे के साथ कुछ कुछ चीजें करना, ये बहुत ही ना हमारे इंडियन कल्चर में बहुत प्रैक्टिस की गई है ये सब चीजें। जैसे पुराने जमाने में औरतें घूंघट निकाला करती थी। आप अगर राजस्थान में जाएं तो औरतें बड़ी बड़ी नथ पहना करती हैं, आज भी पहनती हैं। सो इस तरह के जो ज्वेलरी एसेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी लेगेसी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। So राइट। that is also one idea behind it, and I wear it with utmost pride. आप कई पिक्चर्स में देखेंगे मैंने बहुत बड़ा सा एक नथ पहना हुआ है यहाँ पे। तो इट इज अ टू वे प्रोसेस। आपने अभी, आई वाज जस्ट सीइंग वन ऑफ योर सॉन्ग्स, उसमें तो आपने, यू आर वेयरिंग अ नोज रिंग विद दिस होल गोइंग अप टू द ईयर, एंड यस। it was looking very amazing. And also, as you थैंक rightly said, these are all part of our small part of our uh, culture, or the or visual representation, which यू। यस। possibly gives a lot of a visual identity for sure, and a pride factor in carrying it forward as the new generation like या। you are. So amazingly done, and very thoughtfully done as well. Beyond this, थैंक यू। आपने, you have collaborated with a huge number of artists. I mean, over a short period of time. I think your first song came in 2018, of, if I'm not wrong. And from there on, you have या। collaborated with Aditya Rikhari, Panther, Shashwat, शाश्वत के साथ, हाँ. यस। And then, though I'm not यस। to recall all of them, I think Anmol Daniel, there's been a a trivedi, lot of there's them. such a ये। What does collaboration mean to you as an artist? जब हम किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इट्स मतलब जो हम उस कोलैबोरेशन से पहले होते हैं और जो बाद में होते हैं ना, हम कई दफा उस बारे में गौर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत फर्क आता है, बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि आप कुछ चीजें उनसे पिक करते हो, आपकी कुछ चीजें वो पिक करते हैं। सो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज दैट हैपेंस ऑलवेज। तो मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बड़े आर्टिस्ट की बात करूं, लेट्स से व्हेन आई रिकॉर्डेड आई नहीं फॉर सचिन जिगर, उनके साथ गाने में द वे दे डायरेक्ट मी, द वे दे, मतलब आई नहीं, यूजुअली मैं उस हाई पिच के गाने में अक्सर नहीं गाती हूँ, लाइक आई एम अ वेरी बेस आर्टिस्ट। Hmm. लेकिन दे पुल दैट आउट ऑफ मी, एंड दैट सॉर्ट ऑफ ओपन दैट विंडो फॉर मी कि यार अगर मैं ये कर सकती हूँ तो फिर तो मैं और जगह पे भी कर सकती हूँ। Ah. तो उसने मुझे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाया। मैन इट वाज विद अमित सर, अमित त्रिवेदी सर के साथ जब मैंने कोलैबोरेट किया, तो उन्होंने मुझे एक पूरा ओपन कैनवस दे दिया। उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशन बताई हुस्ना दी परिये की, एंड ही टोल्ड मी कि नाउ दिस इज योर कैनवस, पेंट द पिक्चर दैट यू लाइक। बट टू लर्न दैट फ्रॉम दैट आर्टिस्ट की इतनी बड़ी लेगेसी होल्ड करके बैठे हैं और फिर भी आज इतने सिक्योर है अपनी पोजीशन में कि वो मुझे इस तरीके की फ्रीडम दे पा रहे हैं, लाइक हाउ बिग अ हार्ट यू हैव टू हैव एज अ पर्सन, राइट। तो Yeah. मुझे वो चीज सीखने को मिली। आदित्य के साथ जब मैंने कोलैबोरेट किया, आदित्य वाज वेरी वेरी प्रॉम्प्ट विद इट, एंड मतलब नो नखरा पर्सन, मुझे वो चीज इतनी पसंद आई उनकी कि हमने बोला, उनको गाना पसंद आया, और फट से 2 ढाई दिन के अंदर उन्होंने हमको एक अपना कुछ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द वर्स बना के दे दिया। And of course the textures that he has and the flavors that he has. So what I'm trying to say is, जैसे मैंने अभी शाश्वत के साथ किया, शाश्वत comes with his own set of passion and energy, and he's just always high on energy, and he's like कि नहीं ब्रो, हम ये करके दिखाएंगे, हम ये इसको तोड़ देंगे, हम ऐसे करेंगे। like he will pay attention to the smallest details in the song, कि नहीं इस वर्ड को ऐसे नहीं, इस वर्ड की मात्रा चेंज करो, इस वर्ड का मायना चेंज करो। like he goes into those details. So Hmm. again, that is that, and the way Shashwat works, like how quick is he? Hmm. आजकल So तो there's आई a थिंक, lot.
आजकल आई थिंक शाश्वत इज एवरीवेयर इन बॉलीवुड. शाश्वत इज, क्योंकि अच्छा काम बोलता है. That is true. I agree. And I mean, kudos to both of you. The song Lut Le Gaye has come out just so wonderful that the entire country is humming to it. And obviously, the way it has been used. मैंने आपका रिएक्शन देखा आपके फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम पे and when you were seeing the song play live in the cinema in the theater and you were quite overwhelmed. Take us through what you felt. Well, it was a moment of surprise, me being overwhelmed, shocked, happy, emotional. मैंने बहुत सारे इमोशंस उस समय में फील किए, क्योंकि मैंने जैसे कि बाकी इंटरव्यूज में भी मैंने ये बात रखी है कि ये गाना बना ही रिलीज के सिर्फ 10 दिन पहले है, Hmm. मूवी रिलीज के 10 दिन पहले. तो जब इतने शॉर्ट नोटिस पे गाना बना है, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गाना फाइनली अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है. हैज इट मेड इट टू द फिल्म, क्या वो प्रिंट पहुंच पाया है, अगर गाना अगर पहुंच भी गया है फिल्म के अंदर, तो क्या वो प्रिंट पहुंचा पाया इतना लास्ट मिनट सारे Hmm. डिस्ट्रीब्यूटर्स को. तो मुझे बहुत सारे, मतलब आई रिमेम्बर 4 दिसंबर की रात में इतनी एंग्शियस थी, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय पेरेंट्स, आई वाज टॉकिंग टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स कि बस मुझे ना, एंड विच इज वाई बिकॉज मैं तब चंडीगढ़ में थी, तो मैं अपनी फैमिली को सुबह का पहला शो दिखाने लेके गई थी धुरंधर का, कि बस मुझे जानना है कि मेरा गाना है या नहीं है. Hmm. एंड जो मुझे सिचुएशन लगा था कि जिस सिचुएशन पे गाना होगा मेरा, वहां तो नहीं निकला. तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है ना, लेट्स लीव दैट असाइड, व्हाट्स गॉन इज गॉन, लेट मी एंजॉय द मूवी, क्योंकि मैं मूवी बहुत एंजॉय कर रही थी. Hmm. And then suddenly this Rahman Daket's victory Eh, scene comes in, and that's when the song plays. And just how you saw in the video, hmm. that was exactly my raw reaction. I was stunned कि ये क्या हो गया मेरे साथ. It was very surreal moment, I think, and everybody can see that. So Yes, that 2025 is really closing for you on a real high. I mean, let's be honest yes, about it. yes, It's a high. yes. So what are the plans for 2026? 2026 is going to be higher for sure. It's going to start on a great note. January first week is what we are targeting for another ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन दैट पीपल आर गोइंग टू सी. गाना बहुत कमाल बना है, वीडियो बहुत मजेदार शूट हुआ है उसका, हमारा प्रोडक्ट एकदम रेडी है, एंड वी आर एमिंग टू रिलीज इट इन जनवरी फर्स्ट वीक. एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट आउट अ स्पेशल EP, hopefully by the end of February is what I'm targeting. वो भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं जो जेन्युइनली आपने कभी नहीं देखा होगा. आपने Hmm. सुना जरूर होगा, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा उस तरीके की चीज एक साथ बंद के साथ में आती हुई. सो गॉड बी काइंड, द एनर्जीज बी इन प्लेस, द इंटेंशंस आर प्योर एंड राइट इन प्लेस. तो वो भी चीज बहुत अच्छी लगेगी. सो इट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑन अ ब्यूटिफुल नोट. I'm sure because see, look, आपका जो आई थिंक पिछले 2000 1999 से अगर जो जर्नी स्टार्ट हुई है of learning music, practicing it for 18 years, and now it is coming into shape. So all this hard work has to pay off, and it is paying off. So we as music culture are definitely looking forward to what's to come from you. We are definitely Thank rooting you. for you, and we look forward to and follow more of your work. Thank you, Simran, on that note, for taking time out for us. It was lovely chatting with you, and Thank you. as Likewise. always, take care. Thank you Take so care. Have much. a great evening. Bye You bye. too. You too.